Let's turn today to Romans chapter 1 and verse 16. आइए आज हम रोमियो 1 अध्याय उसके वचन 16 की ओर मुड़े। We were looking at this verse when we concluded our last study. हम अपने पिछले अध्ययन के अंत में इसी वचन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। Here it says, Paul says, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. वहाँ पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। And I mentioned how the gospel was not just a message, but a power. मैंने यह उल्लेख किया था कि सुसमाचार केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि यह सामर्थ्य है। And we know there's a lot of difference between a written word or a spoken word and something that is powerful. हम जानते हैं कि लिखित या बोले हुए शब्द और सामर्थ्य के बीच बहुत अंतर होता है। We can compare it with Genesis chapter 1. इसे हम उत्पत्ति अध्याय 1 से तुलना कर सकते हैं। There we read that God spoke, let there be light. वहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। And what happened? Immediately the power of God was released and the darkness was driven out and light came in. और क्या हुआ? जब परमेश्वर ने कहा तो उसी क्षण उसकी सामर्थ्य प्रकट हुई, अंधकार चला गया और ज्योति आ गई। And right through Genesis chapter 1 you see every time God spoke a word there was power. उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर ने कुछ कहा, सामर्थ्य प्रकट हुई। See, God's word is not like man's word. परमेश्वर का वचन मनुष्य के वचन जैसा नहीं है। There's a power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। That's why it's so important to read the Bible, to believe it, to confess it with our lips. Because the power of God is hidden in these words of Scripture. इसी कारण बाइबल पढ़ना, उस पर विश्वास करना और अपने होठों से उस वचन को स्वीकार करना इतना आवश्यक है, क्योंकि इन पवित्र शास्त्रों के शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ्य छुपी हुई है। So, we see here Paul calls the gospel not just words but the power of God. यहाँ पौलुस सुसमाचार को केवल शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य कहता है। Have you experienced the gospel, the good news of Jesus Christ, not just as a message that you're convinced with in your mind, but a power? क्या आपने सुसमाचार को, यीशु मसीह के शुभ समाचार को केवल एक बौद्धिक संदेश की तरह नहीं बल्कि उस सामर्थ्य की तरह अनुभव किया है? That has driven out the darkness from your life, brought light into it. He says is the power of God into salvation. जिसने आपके जीवन से अंधकार को निकालकर ज्योति भर दी। वहाँ कहा गया है कि सुसमाचार वास्तव में उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। Salvation is a word which is misunderstood by many Christians. उद्धार बहुत से मसीह भाई बहनों के द्वारा उद्धार को सही प्रकार से नहीं समझा गया है। Many people think of salvation as only being saved from hell, being saved from guilt. अधिकतर लोग उद्धार को केवल नरक से बचाव या दोष से छुटकारा समझते हैं। You know, they ask people, are you saved? वे अक्सर लोगों से पूछते हैं, क्या आपका उद्धार हुआ है? What do you mean by are you saved? What they mean is, are you saved from hell? Are you saved from the guilt and penalty of sin? इसका मतलब यह पूछते हैं, क्या आप नरक से बच गए हैं? क्या आपके पापों की सजा और दोष से आप मुक्त हो गए हैं? That is the first step of salvation. But salvation is much bigger than that. यह उद्धार का पहला चरण है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन बाइबल के अनुसार उद्धार इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। We can think of salvation in 3 tenses: past, present and future. हम उद्धार को 3 कालों में समझ सकते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। So, salvation in the past tense is, if you have accepted Christ and received Him as your Savior, भूतकाल का उद्धार, यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, asked Him to come into your life and forgive your sin, well, then your past sins are blotted out. और उनसे आपके जीवन में आने के लिए कहा है, अपने पापों की क्षमा मांगी है, तो आपके बीते हुए पाप क्षमा हो गए हैं। You're no longer going to go to hell. You're no longer going to be punished by God. As far as the past is concerned, you're saved from guilt,
from hell. You've got a clear आप conscience. अब नरक नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर द्वारा दंड नहीं पाएंगे। जहाँ तक भूतकाल का सवाल है, आपका उद्धार हो गया। दोष से, दंड से आपका विवेक अब शुद्ध है। But now you need to experience salvation in the present tense. अब हमें उद्धार के वर्तमान पहलू का अनुभव करना है, And that is from the power of sin which dwells in your flesh. और वह है पाप की शक्ति से छुटकारा जो आपके शरीर में बसी हुई है। You see, it's the power of sin that dwells in your flesh that makes you angry, that makes you lust with your eyes, that makes you fight and quarrel and grumble and complain and make you jealous and so many other things like that. और यही पाप की शक्ति जो हमारे शरीर में बसी हुई है हमें क्रोधित बनाती है, आंखों से वासना कराती है, झगड़े, शिकायत, ईर्ष्या, कुड़कुड़ाहट और नकारात्मक विचारों की ओर ले जाती है, और इसी तरह और अन्य बातें। And salvation from this power of sin is also in the gospel. और पाप की शक्ति से उद्धार भी इस सुसमाचार में है। And then we think of salvation in the future from the very presence of sin. That is when Christ comes again. और फिर हम उद्धार के उस भविष्य के पहलू के बारे में सोचते हैं जब पाप की उपस्थिति से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा, वह समय जब मसीह दोबारा आएंगे। And he delivers us so that sin is no longer found. We don't have a flesh which keeps tempting us anymore. और हमें पूरी तरह से मुक्त करेंगे ताकि पाप हमारे बीच न रहे, और हमारा यह शरीर जो हमें बार बार पाप की ओर आकर्षित करता है वह भी न रहे। So salvation is from the penalty of sin first of all, from the power of sin now, and from the presence of sin in the future. उद्धार सबसे पहले हमें पाप के दंड से छुड़ाता है, वर्तमान में पाप की शक्ति से मुक्त करता है, और भविष्य में पाप की उपस्थिति से भी पूरी तरह से छुटकारा दिलाएगा। And the gospel contains all three. And right now we can experience at least two of those, past and present, and we await experiencing the future when Christ comes again. सुसमाचार इन तीनों पहलुओं को समेटे हुए है, और अभी हम इनमें से कम दो को अनुभव कर सकते हैं, अतीत में पाप के दंड से मुक्ति और वर्तमान में पाप की शक्ति से छुटकारा, और हम उस भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब मसीह पुनः आएंगे और हमें पाप की उपस्थिति से भी पूरी तरह मुक्त करेंगे। But we should not be satisfied with experiencing only the first part of it, that is from the penalty of sin. लेकिन हमें केवल उद्धार के पहले पहलू अर्थात पाप के दंड से मुक्ति को अनुभव करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। We must go on to experience salvation from the power of sin, otherwise we don't experience the full gospel. We'll see that later as we come to chapter 6. हमें पाप की शक्ति से उद्धार का अनुभव भी करना चाहिए, नहीं तो हम पूरे सुसमाचार का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम अध्याय 6 में आगे बढ़ेंगे हम इसे और स्पष्ट रूप से देखेंगे। For in this gospel, he says in verse 17, the righteousness of God is revealed from faith to faith. क्योंकि इस सुसमाचार में जैसा कि वह वचन 17 में कहता है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट होती है। See, the righteousness of God is so much higher than anything we can conceive with our mind as righteousness. There are a lot of people who imagine themselves to be very holy. देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे मन में धार्मिकता की जो भी कल्पना हो सकती है उससे कई अधिक महान और ऊंची है। बहुत से लोग अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, And who look down on others as not being holy enough compared to them. और दूसरों को तुच्छ समझते हैं कि वे इतने पवित्र नहीं है उनकी तुलना में। But really, I mean, this is like a student who got 1% in mathematics, comparing himself with a student who got 0 and saying, I'm better than you. Or a student who got 2%, comparing himself with a student who got 1% and saying, I'm better than you. लेकिन सच्चाई यह है कि यह वैसा ही है जैसे गणित में 1% पाने वाला छात्र 0 पाने वाले से कहे मैं तुमसे बेहतर हूँ, या 2% पाने वाला छात्र 1% पाने वाले से कहे मैं तुमसे बेहतर हूँ। Whereas God's standard is 100%. You see, pass marks in an earthly school is probably 35 or 40%, but God's pass marks are 100%. लेकिन परमेश्वर का मापदंड है 100%। धरती के स्कूल में पास होने के लिए 35 या 40% काफी होते हैं, लेकिन परमेश्वर की परीक्षा में पास होने के लिए 100% होता है। And most of us don't even come to 1%.
सच तो यह है कि हम में से अधिकतर तो 1% भी नहीं पहुंचते। So where is the question of ever attaining God's standard? In fact, the Bible says that all our righteousness is like filthy rags. Isaiah 64 and verse 6. तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के मापदंड को पूरा कर रहे हैं? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है हमारी सारी धार्मिकता अशुद्ध वस्त्र के समान है। यशाया 64 उसका 6। And many people haven't seen that. They think they are good, they think they're better than others because they haven't seen God's standards. लेकिन बहुत से लोगों ने अभी तक यह नहीं देखा है। वे सोचते हैं कि वे अच्छे हैं, दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर के स्तर को नहीं देखा है। They haven't seen what absolute purity is. The righteousness of God is revealed in the gospel, it says. क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर की वास्तविक धार्मिकता और पवित्रता के स्तर को नहीं देखा है। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, वहां कहा गया है God's standard. And how can we attain to that standard? यह परमेश्वर का स्तर है, तो हम उस स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? That is what Romans is all about. How can I have 100% and be accepted by God? यही रोमियो की पत्री का सार है। प्रश्न यह है कि मैं कैसे 100% अंक प्राप्त करूं और परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाऊं। It's by faith. And from one degree of faith to another, it says, from faith to faith. उत्तर यह है विश्वास के द्वारा, और यह एक विश्वास से दूसरे विश्वास की ओर बढ़ता है, जैसा कि लिखा है विश्वास से विश्वास तक। Means that we experience first of all faith for freedom from the penalty of sin, and then faith for freedom from the power of sin. From faith to faith, as it is written, the righteous man shall live by faith. That's a quotation from Habakkuk chapter 2. इसका अर्थ है पहले हम विश्वास के द्वारा पाप के दंड से मुक्ति का अनुभव करते हैं, फिर हम विश्वास के द्वारा पाप की शक्ति से भी मुक्त होते हैं, जैसे लिखा है धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह हबक्कुक 2 अध्याय से लिया गया है। And it says there that the man who God accepts as righteous is the man who has arrived there by faith. That means he trusts God to make him righteous. और वहां यह लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाता है वही वास्तव में धर्मी है। वह व्यक्ति जो विश्वास के द्वारा उस स्थिति तक पहुंचा है, इसका अर्थ यह है कि वह परमेश्वर पर भरोसा करता है कि वही उसे धर्मी बनाएंगे। That means he says, Lord, I can't make it. You got to do it. It's something like the disciples toiled all night to catch fish and they couldn't catch it the whole night, and then Jesus came and filled their boats immediately. That's a picture of salvation. हमें यह कहना होगा, हे प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ। यह ठीक वैसा ही है जैसा हम लूका 5 में देखते हैं। शिष्य सारी रात मछलियां पकड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर यीशु आते हैं और एक ही पल में उनकी नौकाएं मछलियों से भर जाती है। यह उद्धार का चित्र है। I try for years and I can't save myself. Like those disciples couldn't catch fish. And then in a moment, Jesus puts his righteousness upon me and I get 100%. उद्धार के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं सालों तक, पर खुद को बचा नहीं पाते। जैसे शिष्य मछली पकड़ नहीं पा रहे थे, फिर एक पल में यीशु अपनी धार्मिकता मुझ पर रख देते हैं और मैं 100% धर्मी हो जाता हूँ। He gives me his marks. He got 100%. And he gives me his marks. That's what salvation is. That's the way I attain to the righteousness of God. You cannot attain to the righteousness of God by struggling all your life. You got to receive Christ and receive his righteousness. And then I live by faith. वह मुझे अपने अंक देता है। उसने 100% अंक पाए और वह मुझे अपने अंक देता है। यही उद्धार है। इस तरह परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करके परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकता। आपको मसीह को स्वीकार करना होगा और उसकी धार्मिकता ग्रहण करनी होगी, और फिर मैं विश्वास के द्वारा जीता हूँ। Day by day, I live trusting him to make me righteous in the different situations of life. दिन प्रतिदिन मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि वह मुझे विभिन्न परिस्थितियों में धर्मी बनाएगा। And then he begins in verses 18 onwards to describe how man fell into sin. फिर वह वचन 18 से आगे यह बताना शुरू करता है कि मनुष्य पाप में कैसे गिर गया। He says how man descended into the depths of
degradation. और कैसे वो नैतिक आत्मिक रूप से गहराई में उतरता गया। And because of this, the anger and the judgment and the wrath of God is revealed from heaven against every type of ungodliness, unrighteousness, of men who suppress the truth in unrighteousness. वो बताता है कि मनुष्य किस तरह पतन की गहराइयों में गिर गया, और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध, न्याय और प्रचंड क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है हर प्रकार के अधर्मी और अन्याय के खिलाफ जो सत्य को दबाते हैं। See, what does it mean to suppress the truth? That means your conscience tells you that you've done something wrong, but you suppress it. देखिए, सत्य को दबाने का अर्थ है, इसका मतलब है कि आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन आप उसे दबा देते हैं। You tell your conscience to keep quiet, to shut up and don't open your mouth. आप अपनी अंतरात्मा से कहते हैं, चुप रहो, मुझे कुछ मत कहो। You see, many people who do wrong, their conscience tells them they're doing something wrong, but they suppress that truth in unrighteousness. बहुत से लोग जो गलत काम करते हैं, उनका अंतरात्मा उन्हें बताता है कि यह गलत है, लेकिन वे उस सत्य को अधर्म से दबा देते हैं। And God's anger is revealed against all these people who've committed sin, but who don't acknowledge that they're guilty. पौलुस कहता है, परमेश्वर का क्रोध ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध प्रकट होता है जो पाप करते हैं लेकिन अपने दोष को स्वीकार नहीं करते। And he says that which is known of God is evident within them, for God has made it evident for them, for since the creation of the world, जो परमेश्वर के विषय में जाना जा सकता है वह उनके भीतर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया है सृष्टि की रचना के समय से ही। verse 20, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. वचन 20, परमेश्वर के अदृश्य बातें, उसकी अनंत सामर्थ और दैवीय स्वरूप स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जो उन बातों में समझे जाते हैं जो उसने बनाई है, इसलिए मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं है। See, there are people today say, how do we know there is a God? And here's the answer. Since the time of creation, God has manifested His power in the universe. Look at the planets. आज भी कुछ लोग पूछते हैं, हमें कैसे पता चले कि परमेश्वर है? इसका उत्तर यह है कि सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने अपनी शक्ति सारे आकाश मंडल में प्रकट की है। ग्रहों को देखिए। That keeps such perfect time that we can even set our watches by them, the stars in the sky. Do you think these came by accident? Supposing I were to tell you that one day there was a storm and lightning and thunder and all that, and a lot of pieces of glass and metal got... जो इतने ही सही समय सारणी बनाकर चलते हैं कि हम अपनी घड़ियां भी उनसे सेट कर सकते हैं। आसमान के तारे, क्या आपको लगता है कि ये सब संयोग से बने हैं? मान लीजिए कि एक दिन एक तूफान आया, बिजली चमकी, गरज हुई और बहुत सारे कांच और धातु के टुकड़े उड़ रहे थे। क्या आप सोचेंगे कि ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया? Hit against each other and broke up into small pieces, and finally, at the end of it all, there was a beautiful watch that came out of that, which keeps perfect time. The watch I wear on my hand. Would you believe that? वे सभी टुकड़े आपस में टकराए और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, और अंत में उन सब के बीच से एक सुंदर घड़ी बनकर निकल आई जो एकदम सही समय बताती है। ठीक वैसा ही घड़ी जैसी मैं अपने कलाई पर पहनता हूँ। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? You wouldn't believe it. You say that's impossible. You're telling a story. An intelligent person made that watch. I see it's exactly like that with creation. How can you believe there was a big bang and crash and thunder and all of a sudden all these planets and stars came into existence? It wasn't like that. आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप कहेंगे यह असंभव है। आप कोई कहानी सुना रहे हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसी घड़ी बना सकता है। बिल्कुल यही बात सृष्टि के साथ भी है। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कोई बड़ा धमाका हुआ, बिजली और गरज हुई और अचानक सारे ग्रह और तारे अस्तित्व में आ गए? ऐसा नहीं हुआ था। There was an intelligent being, more intelligent than you and me, who created this and created you and me. And says all these things indicate there is a God. So you don't have any excuse. You're without excuse. There is a God in heaven. कोई बुद्धिमान सत्ता थी, आप और मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान, जिसने इस सारी सृष्टि को रचा और आपको और मुझे भी बनाया, और वह कहता है कि ये सारे चीजें इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर है। इसलिए आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप बिना किसी बहाने के, क्योंकि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। And we are answerable to Him, that God has put a conscience within each of us.
and we are answerable to this God. और हम उस परमेश्वर के प्रति जवाबदेह है। परमेश्वर ने हम में से हर एक के भीतर एक अंतरात्मा रखी है और हम इस परमेश्वर को उत्तर देने के लिए उत्तरदायी हैं।